Ma'am, she is the best executive professor. Hello, ma'am. Welcome, ma'am. So here, what you are seeing here today, we have showcased our own cases, which we have done here since I have joined here. We have done all the challenging arrhythmias, that is the fast heartbeats, slow heartbeats we are dealing with, heart failure we are dealing with, and we have showcased all those cases, how we are doing it differently from the rest of the world. So this is very important that we are doing something different, something we are accepting all challenging cases and we are giving good results to them. So, sir, we are going to go Facebook Live to answer the questions from the audience. And but I would like you all to hear from Dr. Niranjan. He is a very new member of the Apollo family, an excellent surgeon. Dr. Varun Bansal, who is another new joining in our family and doing great work in their fields. So please listen to them also. Thank you, Dr. Vanita. Congratulations on this excellent initiative, and we are proud to have this state-of-the-art, world-class electrophysiology unit here, led by Dr. Vanita, and doing some incredible groundbreaking work right at Apollo University, New Delhi. I'm also very proud to be associated with her as a cardiac surgeon, along with my colleague Dr. Varun. So congratulations and all the best. Good morning. Good morning and congratulations, ma'am. It's a great initiative, and we have state-of-the-art treatments available for all patients of Apollo Hospitals. I'm proudly associated with the group and Dr. Vanita, and I'm part of the initiative as well. I really blessed to be here. Thank you. Namaste, good morning to everyone. For me, I stand here on this piece of land, which is a beacon of hope to many, and a hospital that has always believed in innovation, path-breaking work, and first of its kind work that generates the best clinical outcomes and churns out the benefit to humanity. And I've seen it grow from strength to strength, and I'm extremely proud of being a part of it. With the world's best clinicians here, we have able leadership. Shiv is here, and I'm sure this will continue to happen as a beacon of hope to many, many who seek medical care for complex illness. So best of luck to the team, Dr. Vanita and the rest of you. And I'm sure our nurses will be of great support to whatever you plan. Thank you for this opportunity. Sir, कुछ तो बोलिए. Sir, please. So, Dr. Vanita Arora has been an asset to this organization, and she's been really doing a yeoman service by doing this specialized procedure here. And we wish her all the very best. I must also thank the sponsors for this event who have been kind enough to bring the models required for showcasing, which will benefit patients and people who would like to know more about this and see what's the best possible option available for their dear and dear ones. Thank you very much. So, sir, we are today doing something special apart from Facebook Live. We are going to showcase a small ECG machine, which can give us 6 to 12 leads of ECG. It is a small machine which comes in the pocket, and it is from Augusta. It is known as Sanket Life. So it is available. We want to do some free ECGs, show the demos. So this is the ECG machine. With 2 fingers, you can go ahead and record the ECG. We also have with us the CPR mannequins. We are going to 30 people. We are going to train at least 30 people with hands-on CPR today. We will give the training as we go by during the day, and we will have all the mannequins and hands-on training we will give. Whoever is interested can please join us, and it will be really great. So this is CPR is very important. ECG is very important part of my field.
because ECG gives me the diagnosis. CPR saves life in sudden cardiac arrest. So these two go hand in hand. Thank you, sir. So, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. The last application. Zero. I mean, that was my patient. The last one was my. The last one was mine. So much. You. Please go ahead. Yeah, I was here. It's very different here. Let me get on a second. Is that okay? How are you? I'm good. So, Hello, Namaskar, Sat Shri Akal, Adab. Welcome to Indraprastha Apollo Hospital. We are on Facebook Live today. This is an event we are organizing on cardiac electrophysiology. Electrophysiology is a branch of cardiology which deals with heartbeat, the faster heartbeats, the slower heartbeats, and heart failure. So EB is unknown to the world because as compared to heart attacks, MIs, chest pains, we do not care about palpitations. So palpitations, giddiness, syncope, loss of consciousness are the most important symptoms that come up and we deal with in cardiac electrophysiologists every day. What we are showcasing today are the challenging cases that we have been doing uh, for past 2 years and giving good result to the patient. So we have with us your name, Anurag. He has a question, so I will pass on the mic to him so that he can ask his question and then we go from there. Yeah. Hi. So my question is, ECG always gives point in time, right? And you have echo ECG that also is point in time. But when it comes to angiography, that talks about the blockages. Correct. Does this machine talk about blockages or only the graph, only the flow of blood in terms of your heartbeat? Here I will start answering this question by giving you an example that when you construct a house, you have two systems put in. One is the water system, the other is the electrical system, right? One is plumber's job, one is electrician's job. That
the time relief is lesser. Is my understanding. This is what truly I understand. 90% of the time ECG is normal in blockages. That's not true. There are some subtle changes which always come in the ECG. They need to be picked up by the right people. When you put the patient on the Will stress, Sanket picked up as the right yes, people? it does. It does. Because you're doing it at that time, it does pick it up, right? And then, ECG, you don't stop at ECG. You go further and investigate the patient further by doing a stress echo. Right? No, ECG is normal, still we will do it if the symptoms are happening. See, we go according to the symptoms. We are not treating the diagnostics things. You have to be curious about the history of the patient, keep asking the question, and listen to the patient's symptoms. And when you listen to the patient's symptoms, that is when you investigate them further. Investigations coming normal doesn't mean you are not doing something right. It means you are proceeding on the right path. You just have to get the diagnosis. Yeah, I got the answer. Yeah? I got it. Okay. Thank Thank you. you. Yes, please. Other thing I wanted to add to your question is to what Dr. Vanita mentioned. Even though we don't have symptoms at rest, and when you have approximately 90% of blockage, but there are certain symptoms on exertion that you may feel, and so when you have those symptoms, that's when you go to the doctor, you're not sure whether you have blockages or not. So the best thing what the doctor does is actually put you on a treadmill or put you on a stress. And that is when the ECGs will start showing. That's because the heart is not able to meet the metabolic demands because of the 90% narrowing that we are mentioning. So yes, you may not have symptoms, you may not have ECG changes at rest, but there are certain tests that only an expert doctor can do and will do to pick out the symptoms and signs of blockages in the heart. Thanks, and you answered it, my question. But still, why I asked you, I'll tell you. Because we being Indians, we are little casual, right? And it's a fact. As in, there is nothing wrong. We are casual. If something happens, we believe, okay, शायद मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए I'm little restless. Last 2 nights I have not slept properly. That is why I'm little restless. But at times I have seen few of my friends. They are very fit. They are regular sportsmen. But suddenly on field they are collapsed because there is a heart attack. So how does that happen? Because their ECG is normal. That has happened with me also. My ECG was normal, but then I have. You are a heart attack? No, I never had. My father had that. So I think excellent question given that there has been a rise in sudden cardiac arrest, not heart attack. There's a difference between heart attack and cardiac arrest. So there's been a rise in cardiac arrest in young people. There are numerous reasons for that, but it is the lack of awareness in general population, especially in India. We tend to take symptoms or signs very lightly, thinking it's just a gastric trouble or tiredness or fatigue or weather. The key word here is to not neglect any of these signs and symptoms. Whether you're a young person, whether you're in your 30s, 20s, 40s, if you're feeling uneasy, go to the nearest hospital or go to your doctor or just give a call and say, this is what I'm feeling. Many of the things can be prevented by timely intervention and timely attention. I would like to add on to this. In case of a heart attack, like as you said, people still have time. They have half an hour, 1 hour to reach. But in case there's a malignant arrhythmia, patient does collapse immediately. And if there are recurrent runs like the patient is having intermittent runs of recurrent arrhythmias, it is all the more important to get investigated in time so that that catastrophe can be avoided. Thank you, Varun. That was actually a very interesting statement and absolutely true. 85 to 90% of the patient survive heart attack. They do not die of heart attack. Please know, 85% से 90% लोग हार्ट अटैक से बचते हैं. मुझे नहीं याद हमारी कैथलैब में आए हुए एक्यूट चेस्ट पेन के साथ हार्ट अटैक के साथ पेशेंट कब कोई गए हैं. हेलो सर, प्लीज कम. सर, वी आर ऑन फेसबुक लाइव. प्लीज कम सर. सर, प्लीज कम. Diti, please come. Join us. So, welcome to our new DMS, Dr. Puri, Sir Varun, Niranjan. So, we are doing Facebook Live, sir. So, लेकिन आपको जब मैं बता रही थी
85% से 90% पेशेंट्स हार्ट अटैक के सरवाइव करते हैं। मुझे याद नहीं है कब लास्ट कोई पेशेंट को हमने लूज किया था बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, लेकिन 85% से 90% पेशेंट्स विल नॉट सर्वाइव सडन कार्डियक अरेस्ट विच अकर्स, जो डॉक्टर वरुण ने अभी बताया, बिकॉज ऑफ malignant arrhythmias। malignant arrhythmias क्या होता है, आपकी हार्ट बीट 300-400 बीट्स पर मिनट पे हो गई। जो हार्ट को बीट करना चाहिए 70-80 बीट्स पर मिनट पे, वो इस वक्त बीट कर रहा है 300-400 बीट्स पर मिनट पे, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। हम सब ने शाहरुख खान की मूवी देखी है चक दे इंडिया, 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो हमारे पास 70 मिनट नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है। Exactly first 6 minutes we have to make that person जिसको अरिथमियाज हुए हैं, जो कोलैप्स कर गया है, जिसको सिंकपी हो गई है, उसकी जान बचाने के लिए उस इनिशियल 6 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं, हम कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कर सकते हैं, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं। आज हम सीपीआर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पे। जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज अपना हैंड्स ऑन सीपीआर करें, ताकि जो ये इतने, जैसे अनुराग ने पूछा, इतने यंग लोग कैसे आजकल मर रहे हैं, बिकॉज हम में से किसी को सीपीआर करना नहीं आता। अगर कोई कोलैप्स होके गिर जाता है, मैंने वीडियो देखा, इट वाज सच अ डिस्टर्बिंग वीडियो। हमारे यहाँ पे जो यमुना विहार में जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे एक रनर था, यंग गाय, ही इज रनिंग और वो गिर गया, कोलैप्स कर गया। उसके पास अच्छे खासे 20-25 लोग खड़े हैं जो उसके कॉलीग्स हैं, और वो देख रहे हैं उसको। किसी ने सीपीआर शुरू नहीं किया ताकि उसकी जान बच जाए। वी लॉस्ट दैट पर्सन। तो हमें सीपीआर सीखना चाहिए। जो सर्वाइवर होते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के, या जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, जिनमें हार्ट फंक्शन कमजोर होता है, हम उनमें डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम AICD बोलते हैं। हमने इसका भी डिस्प्ले यहाँ पे किया है। हम ICD लगाते हैं जो कि रिदम का, एक हमारा रिदम का बैट वो होता है, जिसको बोलना चाहिए इमरजेंसी किट, हम चेस्ट में डाल देते हैं। जब भी रिदम फास्ट होती है, वो डिवाइस थेरेपी देता है, एक डिफिब्रिलेट करता है, एक शॉक देता है और पेशेंट की जान बचाता है। दिस इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। So I would request now, sir, sorry, Dr. Puri, General Puri, sorry, retired General Puri, to please say a few words for our viewers, and then we go take it. So, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। और ये जो जागरूकता लाने की एक कोशिश है अपोलो हेल्थ केयर में, जिसका हमने ये ठाना है कि हम अपने मरीजों को, अपने जो हमारे लोग जो हमारे पास आते हैं, हम उनको सिर्फ इलाज नहीं पर उनको समझाएं कि प्रिवेंशन कैसे करना है, और अगर कल को कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो आपको इमरजेंसी में जान बचाने के लिए क्या कार्रवाई करनी है। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ। मैं 40 साल मिलिट्री में रहा हूँ, एंड उस टाइम पे हमने सारे देश विदेश की जो मिलिट्री डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका में हर इंसान, एवरीबडी नोज बेसिक लाइफ सपोर्ट। सीपीआर की बात मैडम बता रही थी, कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं इमरजेंसी में। कंपलसरी है अमेरिका में कि आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही चाहिए। उसके जो तौर तरीके हैं आपको आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे देश में भी ये एक सिस्टम शुरू होना है। अपोलो हेल्थ केयर की शुरुआत कर रही है। बहुत खुशी है मुझे। मैं आप अपने डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको अपनी शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. We have with us Dr. Neeti. Dr. Neeti is the pioneer of radiology department. She is the diagnostician who gives us the clues to manage our patient. So, Dr. Neeti, please say a few words. So
Vanita is doing right now is something absolutely fantastic, and we have a new team who has joined us to take the Apollo cardiology to the next level, and we welcome all of you. And we welcome all of you. And please make sure all of you have your cardiac checkups done regularly. Please visit your cardiologist as and when you think you need it. Even if you don't need it, please do come and have a preventive health checkup done. It really helps, it really prevents episodes and loss of lives. So bring your family and friends and please make sure you have your checkups done. Thank you. Thank you, Dr. Vicky. Thank you so much. So we are on Facebook Live. If there is any question, आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो हम लोगों के लिए, प्लीज पूछिए. कोई भी जाना क्वेश्चन किसी का हो तो पूछिए. Shivan, you want to ask something? यहाँ पे बोल रहे हैं चेंज योर माइक्रोफोन. हमारा पास स्पीकर नहीं चल रहा है क्या फेसबुक लाइव पे? It's coming. तो आप ज्वाइन करें फेसबुक लाइव पे क्वेश्चन आंसर. Thank you so much. Thank you so much. So, Shivan, you want to ask any question? So I just want to know what all are the diagnostic devices which a normal person can do to figure out if he's having any heart issue or not. Okay. So, thank you for that question, Shivan. So, शिविन का क्वेश्चन था कि हम डायग्नोज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या डायग्नोस्टिक टूल्स यूज कर सकते हैं कि हमें पता चले कि हमारे को हार्ट बीट की प्रॉब्लम है या हमें कोई हार्ट अटैक हो रहा है या कोई हार्ट का इशू है. डायग्नोस्टिक्स जो है हमारे वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल हो गए हैं आजकल इन फॉर्म ऑफ दिस इज आवर हार्ट मॉडल. सो जो हमारे टूल्स हैं वो बहुत सिंपल हो गए हैं. सिंपल चीज ये है इन फॉर्म ऑफ अ स्मार्ट वॉच. हम स्मार्ट वॉच सारे स्मार्टफोन्स लेके यूज कर रहे हैं. स्मार्ट वॉच पहनिए. अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है इसमें ईसीजी रिकॉर्ड करिए अपनी. यू कैन बाय द टूल्स लाइक संकेत लाइफ वाले यूज कर रहे हैं हमारा ये जो टूल है ईसीजी मशीन है छोटी सी, इसको बाय कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसी टाइम पे अपनी ईसीजी लीजिए. बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास इन फॉर्म ऑफ ईसीजी, एक्सोकार्डियोग्राफी एंड एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर है जो कि 24 घंटे का ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि कोई पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है या पेशेंट को अरिथमियाज तो नहीं हो रहे हैं. ये दिस वी कैन डू. ईएलआर वी कैन डू अप टू 7 days तक एक्सटेंडेड ईएलआर अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, ma'am, please. Is it possible to reverse it with lifestyle changes? You have been diagnosed with atrial fibrillation. Is it possible to be reversed with lifestyle management? Okay, yes, ma'am. You have to rule out any reversible causes of atrial fibrillation. Now, reversible causes में क्या क्या होता है? Females में anemia, thyroid, ठीक है. उसके साथ साथ LV डिस्फंक्शन, हार्ट का फंक्शन अगर कमजोर हो, any kind of valvular heart disease, mitral valve की disease, aortic valve की disease can cause atrial fibrillation. अगर ये सब चीजें हैं आपके में तो आप उनको कंट्रोल करेंगे. वाल्व की मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके आगे चलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन in Indians I have seen, if it is there are nothing else, no reversible causes, first episode of atrial fibrillation, get a coronary angiography done. It is associated with a tight blockage which is not showing you as chest pain. वो chest pain की तरह आपके पास नहीं आ रही है, वो अरिथमिया atrial fibrillation की तरह आपके पास आ रही है. आप उसको ब्लॉकेज को खोलेंगे, आपकी जो atrial fibrillation है आपको कभी नहीं. ठीक है. Atrial fibrillation is a very interesting, very simple yet very complicated arrhythmia that we deal with. क्योंकि atrial fibrillation एक तो symptoms देता है आपको कि आपको बड़ा अनईजी फील होता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है. इसके साथ साथ वो क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है ऊपर के चेंबर में,
जो कि क्लॉट डिसलॉज होकर ब्रेन को जा सकता है। कितने ब्रेन स्ट्रोक्स पेशेंट आते हैं विद अनडायग्नोज्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। एक्चुअली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन और उनका वो डायग्नोज ही नहीं होता। Does that answer your question? Yes, please. Madam, thank you for such a good initiative. Many of us have undergone COVID infection last 4 years. So, do you recommend, regardless of age, those who have got already COVID before, they have to do all and based what you are suggesting? Is what are the good ones? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज कोविड ने हमारी ऐसी तैसी गति है। हमारे जो कार्डियोलॉजी की है, हम लोग कोविड को जब डील करते रहे हमने सोचा रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, सीटी स्कोर कराओ, ये करो वो करो करते रहे। हम में से किसी ने रियलाइज नहीं किया जो अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि कोविड का हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है आफ्टर कोविड का। ठीक है, इससे आपको पैल्पिटेशंस हो सकती है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, अरिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम डील कर रहे हैं। इसलिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जिनको कोविड हुआ है, किसी भी एज ग्रुप में आप हैं, अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रही है, अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं हो रहा, फिर भी उसके बावजूद प्लीज अपना कार्डियक एनालिसिस करवाइए, डायग्नोस्टिक्स करवाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इतने यंग लोग फना हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद कोविड। मेरे पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं जो क्लॉट्स के साथ आ रहे हैं, एक्यूट क्लॉट्स के साथ, एक्सटेंसिव क्लॉट्स इन द कोरोनरी आर्टरीज के साथ आ रहे हैं, अरिथमिया के साथ, साइनस टैकिकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट फेलियर के साथ, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, मायोकार्डाइटिस के साथ आ रहे हैं, जिनको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं। I would like to add, COVID जैसे कि मैम ने बताया सिर्फ लंग रिलेटेड डिजीज नहीं है, वो एक सिस्टमिक डिजीज है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। कोविड यानी कोई भी और वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि जनरलाइज वीकनेस लगती है, सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ फीवर नहीं होता। इसीलिए ट्रीटमेंट्स में उसके स्टेरॉइड दिए गए कुछ टाइम और बहुत सारे पेशेंट से ठीक भी हुए। तो बीइंग अ सिस्टमिक इलनेस जिससे कि पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है, तो हर जगह की ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो रही है, हर जगह के म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट हो रही है। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोविड हुआ है, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, जिसको पता नहीं चला, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ हम सब लोगों को एक्सपोजर तो सबको हुआ है, तो इसीलिए आफ्टर इफेक्ट देर से आ रहे हैं। तो जिस किसी की फैमिली में देयर हैव बीन पास्ट इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस, दे शुड गेट चेक, क्योंकि उनकी रिस्क फैक्टर और भी बढ़ जाते हैं। तो पहले फैमिली हिस्ट्री भी है और अब एक्सपोजर भी आ रहा है। एक सेकंड प्लीज। इसलिए मैं फिर से बताऊंगा कि अगर किसी को कुछ भी हल्के से भी सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत लोग छोटे छोटे चीज़ें जो सिम्टम्स दिखाते हैं वो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अभी पोस्ट कोविड एरा में कोई भी सिम्टम्स आप नेग्लेक्ट ना करें। In a protocol following the cardiac investigations, your ECG and echo are normal. Do you further need to go one step up, and what is that? Or do you straight away go for angiography? मैम, अगर आपका ECG नॉर्मल है, आपका एको नॉर्मल है, एको हमारे को बेसलाइन एको ये बताता है कि हमारा हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, ओके ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है कि नहीं है। आपके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। सिम्टम्स आपके क्या हैं, आप किस एज ग्रुप में हैं, एक मिनट, आप किस एज ग्रुप में हैं, आपको डायबिटीज है कि नहीं है, आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है पूरा डायग्नोज करना। अगर आपके सिम्टम्स नॉर्मल भी हैं बट आप किस एज ग्रुप में हैं, यू आर 50 प्लस, इवन इफ फीमेल्स, पहले हम सोचते थे फीमेल्स अप टिल मेनोपॉज आर प्रोटेक्टेड, इट इज नो लॉन्गर ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब पूरा हमारा स्पेक्ट्रम कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इवन इन फीमेल्स चेंज हो गया है। इसलिए आपको मैं इंसिस्ट करके बता रही हूँ ये चीज कि आप अगर 50 से अबव बिलो है, अबव है, आपके सिम्टम्स एनालाइज करके आपको नेक्स्ट स्ट्रेस एको कराना चाहिए। स्ट्रेस एको हमारे को बाय एंड लार्ज अबाउट 85% 90% बता देता है कि मेजर कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। स्ट्रेस एको कराइए, नहीं तो स्ट्रेस थालियम कराइए।
बिफोर गोइंग इन फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं तो आप ये करा के एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस को पॉजिटिव आता है आपको एंजियोग्राफी जरूर से जरूर करानी चाहिए। अगर आपका नेगेटिव आता है और आपको सिम्टम्स हैं, आपको चेस्ट पेन हो रही है बार बार ऑन एक्सर्शन स्पेशली, तब भी नॉर्मल होने के बावजूद भी बिकॉज 15 से 20% पेशेंट में नॉर्मल हो सकता है, दैट इज फॉल्स नेगेटिव, आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए। और एंजियोग्राफी तो आजकल बहुत सेफ चीज है, मतलब मुझे समझ नहीं आता हम डरते क्यों एंजियोग्राफी से इतना। वी डोंट इवन डू इट फ्रॉम द लेग रूट, हम हाथ से करते हैं, आपको 6 घंटे भी टांग सीधी नहीं लगनी पड़ती। Who had severe Delta COVID that episode. Yes, ma'am. And that was there in nearly the entire family. So working up the 60 plus group is different. How do you work up for a 30 plus or 40 plus? That I think you have said that we should go in for stress. यस मैम, स्ट्रेस को कराना चाहिए। आपका एंजियोग्राफी इज अ सिंपल प्रोसीजर मैम। आई मीन 30 ml टाइम में हम पूरी कॉर्नरी आर्टरीज चेक कर लेते हैं, हाथ की नाड़ी के थ्रू कर लेते हैं। इट इज अ सिंपल प्रोसीजर, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। वेदर इट इज सीटी एंजियो और कन्वेंशनल एंजियो, इट इज जस्ट द सेम, बट सीटी एंजियो इज अ गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। 100% आंसर हमारे को कॉर्नरी एंजियोग्राफी से मिलते हैं, विचार करें। सॉरी मैम, Direct angio you said 100%. 100%, absolutely, gold standard. CT angio Around 85%. Okay. So, any other question? We have a question on the chat box. How does robotic technology assist in maintaining a stable heartbeat during cardiac surgery? Wow, that is a question for Dr. Varun. Thank you so much. Thank you so much. That's a beautiful question and very interesting one as well. So I'll read it out again so that everybody understands. How does robotic technology assist in maintaining a stable heartbeat during cardiac surgery? So robotic technology actually helps us by not initiating any significant inflammatory response, because in robotic technology we do not cut open the chest. रोबोटिक सर्जरी में चेस्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चेस्ट खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, एरिथमियाज हो सकती है, हार्ट की हैंडलिंग बढ़ जाती है, हार्ट को टच करने से उसके अंदर एरिथमियाज जनरेट हो सकती है। तो अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हार्ट की हैंडलिंग कम होती है, ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन कम होती है, उससे जो हार्ट रेट है वो स्टेबल रहती है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इसका फायदा ये होता है कि रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन सब चीज़ें बहुत कम होने से हार्ट की रिदम एबनॉर्मलिटीज कम होती है ऐसे पेशेंट्स में जिनकी रोबोटिक सर्जरी होती है। एंड डेफिनेटली हार्ट को जो भी ट्रीटमेंट अंदर चाहिए, अगर सीएबी की करनी है, वाल्व सर्जरी करनी है, तो कंप्लीट प्रोसीजर विदाउट ओपनिंग द चेस्ट किया जा सकता है। I just want to add to what Dr. Varun has said. Robotic has made इसने cardiac surgery को बहुत it sounds easy लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्निकली इजी बना दिया है। क्यों? क्योंकि हार्ट की इतनी मेडलिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आप हार्ट को जब ग्राफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट की बीट्स को इरेगुलरिटी होती है। लेकिन रोबोटिक में इतना अच्छे से फिक्स होके, विजन आपका इतना क्लियर होके वहाँ पे प्रिसाइजली ग्राफ्टिंग करते हैं that these people do a beautiful job. Beautiful job. I will take another question from here. Okay. So there is a very interesting question from Purva Jain. She says, open heart surgery के बाद pregnancy plan किया जा सकता है कि नहीं? Please answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान किया जा सकता है, लेकिन प्लान करने से पहले अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या अपने डॉक्टर से एक बार आप जांच करा सकते हैं, हार्ट के चेकअप करा सकते हैं, एक इको स्कैन करा सकते हैं, ताकि देयर इज नो अनडायग्नोस्ड हार्ट प्रॉब्लम्स। और अगर आप पहले कोई हार्ट प्रॉब्लम्स थे आपके, तो उनका भी पूरी तरह से चेकअप करा के फिर आप प्रेगनेंसी को प्लान करा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करा सकते हैं, ताकि हम बता सकें कि ये सेफ है। इसमें एक थोड़ी एडिशन है, पेशेंट्स जो कि रिस्क पे हैं प्रेगनेंट और हार्ट सर्जरी जिनकी हो चुकी है और प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। जिनको भी यंग पेशेंट्स में वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई होती है, वो मैकेनिकल वाल्व के चलते ब्लड थिनर मेडिकेशंस पे होते हैं, जिसका नाम है वॉर्फरिन या एसिड्रोम, ऐसे कई और मेडिकेशन।
तो अगर प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन से कंसल्ट करेंगे तो आपको गाइड कर सकते हैं कि वो ब्लड थिनर मेडिकेशन किस टाइम पे बंद की जाए, ताकि ना तो मदर को, ना उस फीटस को, ना बच्चे को कोई भी बैड असर आए उन दवाइयों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ही अगर हो सके तो प्लान करने से पहले ही कंसल्ट कर लें। पर जैसे अगर बाई चांस नहीं कर पाए हैं तो जैसे ही पता चलता है प्रेगनेंसी के बारे में, बाई द एंड ऑफ थर्ड और फोर्थ वीक, तब भी चेक करेंगे तो बहुत बेहतर है। Thank you, Dr. Varun. I have a question for Dr. Niranjan. So, Dr. Niranjan, you call yourself a specific surgeon, a different surgeon from all the cardiothoracic surgeons, from all the vascular surgeons. मैं चाहती हूँ आप हमें सिंपल लैंग्वेज में ये बताएं कि आप डिफरेंट क्या करते हैं। मैं बाय क्वालिफिकेशन कार्डियक सर्जन हूँ, लेकिन जो एओर्टा के प्रॉब्लम्स होते हैं, एओर्टा वो मेन खून की नाली है जो हार्ट से खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसमें एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं या अल्सर्स हो सकते हैं या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और ये बहुत जानलेवा और खतरनाक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब इसका कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। अबाउट 75 to 80% पेशेंट्स में एओर्टिक के अगर एन्यूरिज्म्स हो तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और सिर्फ जब वो रप्चर होते हैं या इसके वॉल्स में टेयर आ जाता है तभी वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और वो यूजुअली जानलेवा हो सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली में या अगर सिगरेट स्मोकिंग हो या एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब फैट डिपोजिशन का डिजीज हो, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछें, और ये सिर्फ एक एको स्कैन या सीटी स्कैन से पता लग सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आपका एओर्टा या ये जो मेन खून का नाली है वो खुला हुआ है, तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा। या तो बिना कट के सर्जरी कर सकते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं। Thank you so much, Niranjan. That's beautiful. डॉक्टर निरंजन एओर्टा को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे कोई माली फूल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। सो एओर्टा हमारी सबसे बड़ी नाड़ी है बॉडी की। ये ब्लड सप्लाई करती है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इवन हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है वो भी एओर्टा से निकलती है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एओर्टा एंड द एओर्टिक वाल्व। और डॉक्टर साहब उसी से डील करते हैं और बड़ी स्पेसिफिक तरह से ये एनालाइज करते हैं पेशेंट को और बेस्ट पॉसिबल केयर देते हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर करके, समटाइम्स विदाउट सर्जरी, स्टेंट ग्राफ्ट्स लगा के, समटाइम्स विद सर्जरी, इवन ये जल्दी से जल्दी घर जाए और ये इम्प्रूव करे। ही इज द फर्स्ट ऑफ हिज काइंड सर्जन इन इंडिया। हमारे पास हमारे सर्जन्स जो हैं वो बाईपास सर्जरीज करते हैं, यहाँ वैस्कुलर वाले पेरिफेरल करते हैं, बट ही इज अ यूनिक सर्जन, ही इज ट्रेन्ड फॉर बोथ। और ये वो सर्जरी को बड़े स्पेसिफिक तरीके से, अपने तरीके से इन्होंने अपना एक मेथड निकाला है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, और उससे ये ट्रीट करते हैं और जल्दी से जल्दी पेशेंट को हेल्दी करके घर भेजते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर निरंजन फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। यस, डॉक्टर वरुण प्लीज। थैंक यू मैम। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो कुछ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनका कि क्लियर आंसर मेरे पास नहीं होता, इवन एज अ कार्डियक सर्जन। वो कहते हैं कि हमारी हार्ट रेट बहुत कम रहती है, 48, 49, 50। थायराइड हमने चेक कर लिया, क्लिनिकल चेक कर लिया, सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर जब भी वो फील करें तो उनकी हार्ट रेट बहुत कम रहती है। तो व्हाट इज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर पेसमेकर, और वो कब उनको जरूरत है कि उनको पेसमेकर के बारे में सोचना चाहिए, या उनको हार्ट रेट 55 पे सोचना चाहिए या 50 पे सोचना चाहिए? ये आंसर कई बार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। Thank you for a very interesting question. As a cardiothoracic surgeon, you can get stuck up at times because ये आंसर हमारे को पता नहीं चलते हैं कि कब करने हैं। अगर हार्ट बीट 50 से नीचे है और पेशेंट कोई भी ब्रैडिकार्डिक ड्रग्स पे नहीं है, हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो हार्ट कंट्रोल करने के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट के मसल इंप्रूव करने के लिए देते हैं। अगर कोई बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नहीं है तो 50 से नीचे हार्ट बीट होना, अगर वो पेशेंट एथलीट नहीं है, दैट मींस रेगुलर रनर नहीं है, तो ये एबनॉर्मल है। इसके लिए पेशेंट की ईसीजी के अलावा आपको 7 डेज का हॉल्टर या 24 आवर्स का हॉल्टर करना चाहिए। नाइट में स्लीप में हार्ट बीट और स्लो हो सकती है। समटाइम्स पेशेंट हैव 6 साइनस सिंड्रोम, उनका जहाँ से हार्ट बीट बनती है वो साइनस नोड स्लो हो गया है,
इस वजह से हार्ट बीट स्लो चल रही है। और माइल्ड से सिम्टम होते हैं, पेशेंट कहते हैं शाम तक मैं फटीग फील करता हूँ, शायद उम्र हो गई है, दिस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस दे मेक। सो उसके लिए अगर आप उसका ईएलआर करवा लेंगे, 24 घंटे का ईसीजी मॉनिटरिंग कर लेंगे, तो आपको बेटर आंसर्स मिल जाएंगे। यू विल हैव आंसर्स एंड देन यू विल बी एबल टू टेल अगर स्लीपिंग हार्ट रेट 30 से नीचे जा रहा है, 35 30 से नीचे जा रहा है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ पेसमेकर। यू नीड अ पेसमेकर। Thank you, ma'am. Thank you very We much. have Dr. Mukesh here with us. He's one of the finest cardiothoracic surgeon of the country. I have a robotic surgeon and I have a best transplant LVAD surgeon, and of course he's a cardiothoracic surgeon also. So Dr. Mukesh, please. Yeah, good morning. अभी तक हमने बहुत सारी बात करी है बाईपास सर्जरी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए और पेसमेकर्स के लिए, हार्ट बीट को रिदम उसका करेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या है, अभी बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में जिनको भी हार्ट फेलियर है, लंग फेलियर है, और सभी तरह की उनकी मेडिसिन थेरेपी है और डिवाइस थेरेपी है। उसके बावजूद भी जो उनकी कंडीशन है वो डिटेरियोरेट कर रही है, एंड विच वी कम एट ए विच वी कॉल स्टेज डी हार्ट फेलियर और लंग फेलियर। तो ऐसे पेशेंट्स को फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, हार्ट ट्रांसप्लांट। दूसरा हमारे पास डिवाइस है जिसको आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और एलवेट, और बाई वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बाई वेंट। और लंग ट्रांसप्लांट के लिए अभी हमने अपना फर्स्ट लंग ट्रांसप्लांट भी लास्ट मंथ हमने कंप्लीट किया है, अपोलो का फर्स्ट है, और वो पूरे नॉर्थ इंडिया में ओल्डेस्ट पेशेंट है टू अंडरगो लंग ट्रांसप्लांट। So डॉक्टर साहब ने आई थिंक इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं हमें ट्रांसप्लांट सर्जरी के। इन्होंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही पहला लंग ट्रांसप्लांट किया है। कार्डियक ट्रांसप्लांट तो बहुत साल से कर रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट ज़्यादा मुश्किल होता है, एंड लंग्स मिलना, वाइबल टू लंग्स मिलना थोड़ा हमारे कंट्री में डिफिकल्ट होता है, बट ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ही इज डूइंग LVADs फॉर पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस रेगुलरली लगा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। अभी एक और अभी एक 2 साल की बच्ची है जिसको कि सीवियर हार्ट फेलियर था और वो सीवियर कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक में थी। उसके लिए अभी हमने टोटल आर्टिफिशियल हार्ट और बाई वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस को हमने इम्प्लांट किया है, और बच्ची अब वो बिल्कुल ठीक है, और अभी जल्द ही जैसे उसका हार्ट अवेलेबल होगा वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसका किया जाएगा। बट ये यंगेस्ट चाइल्ड है इंडिया में जिसका कि ये बाई वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसको स्पेशल नाम है इसका बर्लिन हार्ट, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड में केवल बर्लिन में कंपनी है जो इस तरह का डिवाइस मैन्युफैक्चर करती है, और ये डिवाइस वाज स्पेशली इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी फॉर दिस चाइल्ड, एंड द चाइल्ड इज और मेरा डॉक्टर साहब एक सवाल था। आजकल कई जगह सुना है कि जो हार्ट डिसीज है, स्पेशली इन बनिया कम्युनिटी, आपने देखा है बहुत ज़्यादा हार्ट डायबिटिक, ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जेनेटिक चेंजेस या जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली फॉर द हार्ट प्रॉब्लम, इनका कोई क्योर विदाउट मेडिसिन या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कुछ आप एडवाइस करना है इसके लिए, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा देखा है। देखिए, जीन्स तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपने लाइफस्टाइल को जरूर चेंज कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा है कि हम जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है कि फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप लोगों को कोई बहुत ही जिम ज्वाइन करने हैं, ये है। अब छोटे छोटे दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज है वो करते रहिए, सवेरे शाम जब भी टाइम मिले थोड़ा सा वॉक कर रहिए, और बाकी जो खाना है उसको हमें सिंपल रखना चाहिए, और उसको मिक्स रखना चाहिए कि उसमें चपाती भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, और फ्रूट्स भी है, और सैलेड भी है। इस तरह हमें एक मिक्स डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि सॉल्ट और ऑयल कम। So there is a very interesting question again for you both. Uh, my wife is 25 years old. She has rheumatic heart disease patient. AIMS doctor have advised her MPR repair or replacement surgery. Is it possible by MICS surgery? So definitely intense, especially in females। अगर फीमेल्स की हार्ट सर्जरी ओपन जैसे की जाती है तो उनकी सेल्फ एस्टीम को भी हर्ट होता है,
तो अगर MICS या रोबोटिक सर्जरी उनकी की जाए तो डेफिनेटली की जा सकती है। इंडिविजुअल कैंडिडेचर किसी पेशेंट का कि उस पेशेंट में की जा सकती है कि नहीं, वो पेशेंट का एग्जामिनेशन और डिटेल रिपोर्ट देख के किया जा सकता है। पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको कि माइट्रल सर्जरी, एओर्टिक वाल्व सर्जरी या CABG है, उनको MICS से किया जा सकता है। There is another question on the Facebook chat. My son, who is now 18 years old, 18 साल का लड़का है, was having same symptoms. I didn't understand symptoms. Maybe palpitations. 18 साल की उम्र में होगा. He was diagnosed with this problem at the age of 3. He plays football for his school team. So, what do you suggest? How can we solve this issue? I don't know. Symptoms you have. MBR के बोल रहे होंगे, माइट्रल वाल्व के बोल रहे होंगे. हम दोनों आंसर दे देते हैं. ठीक है कि माइट्रल वाल्व डिसीज है तो क्या करेंगे, अरिथमियास है तो क्या करेंगे. मैं पहले अरिथमियास का आंसर देती हूँ. ठीक है, अगर 3 साल की उम्र पे उसको पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम थी और 18 साल का बच्चा है अब, तो इसका डायग्नोसिस होना चाहिए कि अरिथमियास क्यों हो रही है, हार्ट की बीट फास्ट क्यों हो रही है. एक 12 लीड ECG या एक 24 घंटे का हॉल्टर करा के उस टाइम पे हमें वो एनालाइज करना चाहिए और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट इलाज हो सकता है. कैसे हो सकता है? दिस इज आवर न्यू मशीन, दिस इज आवर 3D मशीन दैट वी हैव हियर, जिससे हम मैपिंग करते हैं, पूरा हार्ट का मैपिंग करके 3D मैप बना लेते हैं. 3D मैप बनाने के बाद हम उनको टारगेट करते हैं एरियाज को जो हमें ट्रबल कर रहे हैं और उसको एब्लेशन करके हम ठीक कर सकते हैं. So it is possible to actually solve your son's problem. So you can heart symptoms लिखा है, you are right, palpitations थे. लेकिन अगर एक पेशेंट माइट्रल डिजीज का हो तो आप बताइए. अगर किसी पेशेंट को यंग एज यानी कि 3 साल की उम्र में भी माइट्रल डिजीज डायग्नोज हुआ है तो मोस्ट कॉमनली वो कंजेनिटल माइट्रल क्लेफ्ट हो सकता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको लीकेज हो रही है. और वेरी अनलाइकली हो कि वो पेशेंट 15 साल का 16 साल का होकर फुटबॉल टीम के साथ खेल रहा हो, तो एक कंप्लीट डायग्नोसिस होना उसके लिए जरूरी है. अगर उसको सर्जरी की जरूरत हो तो वो सर्जरी कैसे भी की जा सकती है, ओपन चेस्ट, MICS, रोबोटिक, बट ये सब कुछ डिसाइड करने से पहले एक डायग्नोसिस बनना जरूरी है. सिर्फ एक पैल्पिटेशंस या हार्ट सिम्टम्स के बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. अब मैं इन दोनों सर्जन्स को बाय कहने से पहले आपको मैं बता दूं हम लोग कैसे इकट्ठे काम करते हैं. हम यहाँ शोकेस करे हुए हैं सारे केसेस जो हमने किए हैं यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, जिनका हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फंक्शन कमजोर होता है. हम उसको सर्जरी में भेजने से पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं क्या उसकी इंडिकेशंस हैं कि वो CRT थेरेपी, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी से बेटर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग हार्ट फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. हार्ट फंक्शन को बाय पुटिंग these 3 leads in the heart, हम हार्ट फंक्शन को 20-25% की इजेक्शन फ्रैक्शन से नॉर्मल ऑफ 50 to 55% में लेके आ सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट क्लिनिकली इस कैटेगरी में नहीं जाते हैं तब ये पेशेंट्स जो जैसे डॉक्टर मुकेश ने बताया लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा सकते हैं या कार्डियक ट्रांसप्लांट की लिस्ट में हम उन पेशेंट्स को डाल सकते हैं एंड पेशेंट्स का लाइफ को बचा सकते हैं. इसके अलावा अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो हम 2 तरह से टैकल करते हैं, या तो बाईपास सर्जरी करते हैं, ओपन बाईपास सर्जरी, या उनकी स्पेसिफिक पेशेंट्स को हम निकालते हैं, टारगेट वेसल्स जिनकी अच्छी होती हैं उनको हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर वरुण बंसल करते हैं. एंड ही डज इट एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फ्रॉम द कार्डियोथोरैसिक पॉइंट ऑफ व्यू. Any other questions before I say bye to these gentlemen? Thank you very much, ma'am. You're welcome. Thank you very much, Dr. Vanita. And it is good interacting with you and this nice session. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you and congratulations. Thank you so much. Thank you so much. So before I say bye to my viewers on Facebook Live, let me tell you हमारा शोकेस आज का क्या था. हमारा शोकेस आज का कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे था, जो कि हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ हम लोग इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं. वी आर डूइंग 3D मैपिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ अरिथमियाज. ये हमारे अपने केसेस हैं जो हमने शोकेस किया हुआ है. पेशेंट्स विद वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, दैट मींस लोअर चेंबर से फास्टर हार्ट बीट का होना जो जानलेवा हो सकता है, उसको पेशेंट को हमने इस मशीन को यूज करके फिक्स किया है. हार्ट बीट्स फ्रॉम द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट जो हमारे को तंग करती है, पैल्पिटेशंस देती है, ये मशीन को यूज करके हम उसको फिक्स करते हैं और परमानेंटली क्योर कर देते हैं. पेशेंट को दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है इन तकलीफों के लिए. इसके अलावा कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी,
जो कि पेस मेकर के थ्रू, 3 लीड के पेस मेकर के थ्रू हम लोग पेशेंट की जान बचाते हैं, पेशेंट का हार्ट फंक्शन इंप्रूव करते हैं। वी डू सबक्यूटेनियस आईसीडी। आईसीडी का क्या होता है, आईसीडी की लीड जो जाती है, कई बार यंग पेशेंट्स में अरिथमियास की प्रॉब्लम होती है तो वो लीड वेन के थ्रू नहीं देना चाहते, तो हम वेन से बचा के उसका स्किन के थ्रू लीड डालते हैं और आईसीडी और डिवाइस लगाते हैं, जिसको सबक्यूटेनियस आईसीडी बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है ताकि यंग पेशेंट्स में वेन्स की प्रोक्योरमेंट ठीक रहे। वी डू कंडक्शन सिस्टम पेसिंग। हमने अभी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की बात की, ये इलेक्ट्रिकल बाईपास है, हार्ट का हम इलेक्ट्रिकल बाईपास करते हैं। हम लोग हार्ट की जो वायर्स हैं, लीड्स को वायर्स के साथ जोड़ के उनका इलेक्ट्रिकल बाईपास कर देते हैं। हम एक्चुअली उनका नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल वायर सिस्टम है हार्ट का, उसको फिक्स कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, ताकि पेशेंट की ईसीजी ठीक रहे, उसको हार्ट फेलियर ना हो, उसको अरिथमियाज ना हो। ये conduction system pacing is going big way for pacemakers, for heart failure patients, for both। इसके अलावा इन्फेक्शन का रेट चाहे बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप करें, डिवाइसेस जब बाहर से कोई चीज डाल रहे हैं तो 1 to 2% इन्फेक्शन का रेट हो सकता है। उसको 1 to 2% को भी जीरो करने के लिए वी यूज दिस टायरेक्स पैच। ये पैच होता है, नेटवर्क होता है, जिसके जिसके अंदर हम डिवाइस डाल के पॉकेट में डाल देते हैं, और ये जो नेटवर्क होता है इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे हमारे ड्रग कोटेड स्टेंट्स आते हैं ना, जो ब्लॉकेज नहीं वापस आने देते हैं, ऐसे ये जैकेट के ऊपर ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स लगे हुए जो इन्फेक्शन नहीं आने देते। सो इसको टायरेक्स बोलते हैं। ये टायरेक्स इज अ नेम ऑफ अ डायनासोर, सो दिस इज अ डायनासोर फॉर इन्फेक्शन। एंड सबसे अच्छी चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इज अ लीडलेस पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर, लीड्स के बिना हम पेसमेकर को लगाते हैं। एक कैथेटर पे माउंट करके एक कैप्सूल साइज का छोटा सा पेसमेकर हम लोग लीडलेस पेसमेकर को लगाते हैं। ये हार्ट के अंदर फिक्स कर देते हैं, और बाकी सब कुछ टांग की नाड़ी के थ्रू या गर्दन की नाड़ी के थ्रू भी कर रहे हैं। और ये लीडलेस पेसमेकर लगा के हम कोई सर्जरी प्रिवेंट करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट कर देते हैं। ये हमारे हार्ट का मॉडल है जो आपको दिखा रहा है। रेड इज एबनॉर्मल, ग्रीन इज नॉर्मल। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो भगवान ने दिया है ग्रीन, और जो रेड है ये एबनॉर्मल है जो हर एक चेम्बर से आ सकता है और हम उसको फिक्स करते हैं। इसके अलावा प्लीज आप लोग हमें ज्वाइन करिए। वी आर सेइंग गुड बाय टू आवर व्यूअर्स ऑन द फेसबुक लाइव एंड वी विल डू द सीपीआर ट्रेनिंग नाउ। वी हैव वेरी गुड इंस्ट्रक्टर विद अस जो हमें हैंड्स ऑन सीपीआर ऑन द मैनिक्विन दिखाएंगे। आप खुद से प्लीज सीखिए, आगे देखिए कि अगर कोई फ्यूचर में इंसान आपके सामने बेहोश हो गया है, उसकी जान आप कैसे बचा सकते हैं। सो प्लीज जॉइन अस ऑन द सीपीआर साइड। इधर आ जाइए। हाँ जी मैम। You just told us the level at which a bradycardia should be investigated, 50 and sleeping less than 40. For tachycardia, what is the upper limit which should be 24 hour? And if your heartbeat is going more than 140, 150 and you're feeling abnormal, you're feeling heartbeat is going very fast, you feel sinking, you feel palpitations, तब आपको उस वक्त ईसीजी करा के कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। 100 तो हमारी नॉर्मल होती है ना, मोस्टली नॉर्मल होती है। थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन जी। हेलो मैम, कोई अगर है और झाड़े में भी उसको गर्मी लगने लगती है, पसीना होने लगता है, इसका क्या कार्डियो से मतलब है? इसका मतलब उसका हार्मोन लेवल पे मतलब हो सकता है खराबी हो। थायराइड इज अ वेरी कॉमन हार्मोन। देयर आर अदर हार्मोन्स इन द बॉडी, अदर ग्लैंड्स आल्सो व्हिच आर देयर दैट कैन बी अफेक्टेड, तो उनको अपना हार्मोनल पूरा वर्कअप कराना चाहिए अगर जाड़े में भी गर्मी लगती है। मोस्ट प्रॉब्ली थायराइड हो जाता है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फेसबुक लाइव। या hello, yeah, let's start the CPR. Over to you.